میں خود یہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح کا بہیو کسی رکن اسمبلی کی طرف سے ہو. میرے قائد کے بارے میں اس قسم کے لہجے جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اسپیکر اس کی تحقیقات کرے اور اس کا فیصلہ کرے. ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. کیا ہم ہاؤس میں ہاتھا پائی کے لیے آئے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ایم ملینا اشرقی. ناظرین، اسی ہفتے ہم بات کر رہے تھے اباؤٹ ویمنز رول اینڈ واٹ سارٹ آف این امپورٹنٹ رول دے پلے آل اوور دا ورلڈ. انٹرنیشنل ویمنز ڈے بڑے زور و شور میں سیلیبریٹ کیا گیا، بڑی تقاریر سننے میں آئیں، بہت ایڈوکیٹ کرنے کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے دا ویری نیکسٹ ڈے وی کم اکراس این انپلیزنٹ سین، جو کہ نئی بات نہیں تھی کیونکہ کچھ عرصے پہلے بھی ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ جیسے مقدس فورم میں کس قسم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. آپس میں پارلیمنٹیرینز جو ہیں تلخ کلامی میں الجھتے ہیں، گتم گتا ہو جاتے ہیں. یہ نئی چیز نہیں تھی، اور ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہوئے آگے ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. واٹ میسج آر یو سینڈنگ اکراس یور کنٹری؟ آگے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کیا ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیا ان کو درس دیا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے. دین وی ایکچولی ریسیوڈ اے گفٹ فرام آور آنریبل پولیٹیشنز یٹ اگین. جو ہم نے کل کے مناظر دیکھے آپ کو دکھایا بھی. مراد سعید صاحب اور جاوید لطیف صاحب دونوں بڑے ہی آنریبل پارلیمنٹیرینز، آپس میں جو گفتگو ہوئی اور جس طرح سے پنچز ایکسچینج ہوئے، اور اس کے بعد کس ایکسٹریم پہ جا کے جاوید لطیف صاحب نے وہ گفتگو کی، کسی کی فیملی، کسی کی ماؤں بہنوں کو گھسیٹنا اس طرح سے. وی ڈو ناٹ ایون وانٹ ٹو شو یو دیٹ ویڈیو، جو کہ دوسرے چینلز نے شاید ایئر بھی کری ہیں، بٹ ہائیلی اس کی مذمت کی جا رہی ہے. ہم آج اس پہ ہی بات کریں گے کیونکہ جاوید عزیز صاحب نے آج آ کے سپوزڈلی ایک اپالوجی تو دی، لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ غصے میں آ کے 2 الفاظ زیادہ بول دیے گئے، جس پر سعد رفیق صاحب ان کے بعد بولے اور کافی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کہہ کے کہ مراد سعید صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے دیٹ واز a reflection of his leader and that this is something that he has learned from his leader جو کہ پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے کہا گیا ہے. آج اس پہ ہم بات کریں گے. اینڈ سیکنڈلی ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں، ہمارے جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں، ان کو اگنور کر کے اس قسم کی ہم چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. آپس میں یہ کیا فرسٹریشن ہے، کیوں اتنا پینک نظر آ رہا ہے پارٹیز کی رینکس میں، ہم اس پہ بات کریں گے. اور پھر جو ہم نے پورے ہفتے کا آغاز دیکھا تھا وہ ایک پھٹیچر لفظ سے، جس پر لیگل نوٹس جو ہے وہ سرو کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ بہت بڑا کرائم کنسیڈر ہو رہا ہے کہ فورن پلیئرز کو اس قسم کا الفاظ سے نہیں نوازنا چاہیے تھا جو فورن پلیئرز پی ایس ایل میں شرکت کے لیے آئے تھے. بہرحال گفتگو کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے میں اپنا انٹروڈکشن کراتی چلوں، گیسٹ کا تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کرا ہے سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ نے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی. السلام علیکم روبینہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جان اچکزئی صاحب. السلام علیکم جان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کری اندلیب عباس صاحبہ، رہنما پاکستان تحریک انصاف. السلام علیکم اندلیب اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. روبینہ، اسٹارٹ آف ود یو. آئیڈیلز اور جو یہ مورلز ہیں ان پاکستانی پالیٹکس، دے کیپ ہٹنگ اے نیو لو ایوری ڈے. ہر روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ آتا ہے، یا وہ سپریم کورٹ کے باہر ہم پینما کیس کے ہیئرنگس کے دوران دیکھ رہے ہوتے تھے، آپس میں الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ پھر فیملی اور پھر خواتین کو اس چیز میں ڈریگ کرنا، کیا کہیں گے؟ علینا، بات یہ ہے کہ ملک اور قومیں ترقی کرتی ہیں، اور ترقی کے بہت سارے جو ہیں مراحل ہوتے ہیں. ایک انڈسٹریل ترقی ہے، ایک جو ہے آپ کی باقی انفراسٹرکچر کی ترقی ہے، ایک ترقی آپ کی اخلاقیات کی بھی ہوتی ہے. لیکن میں دیکھ رہی ہوں اور بہت غم سے میں آپ کو آج کہہ رہی ہوں کہ ہماری جو اخلاق کے بجائے اس کی ترقی کے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور دن بدن ایسے جا رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ دوسرے دن اٹھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آج بہت زیادتی ہوگی تو اس سے بڑی زیادتی دوسرے دن اٹھ کے کوئی کر لیتا ہے. ایک ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں. دہشت گردی کی جنگ تو ہم لڑ رہے ہیں، لیکن دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی جو ہے وہ شدت پسندی کا ایک نام ہے، اور یہ رویے بھی جو ہیں، یہ جو عدم برداشت کے رویے ہیں، یہ بھی ایک دہشت گردی کی اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے.
आप देख लें कि आप अगर किसी की बात सुनना नहीं बर्दाश्त कर सकते, आर्ग्यूमेंट करना हर किसी का हक है, बहस करना हमारा हक है, हम पूछ सकते हैं, लेकिन इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कोई तरीक़ाकार होता है, और वो हम तो उसके मैं तो कहूँगी उस मीरास है हमारी जो हमारा कल्चर है कि जहाँ माँ बहनों की बेटियों की इज़्ज़त सांझी होती है, दुश्मनियाँ 10,000, क्योंकि हमारे पठानों में तो कहते हैं कि अगर चल के लड़की शादियों में अक्सर लोगों के हुए तो लड़का लड़की अगर चल के चले जाते हैं तो वो कहते हैं दीवारें भी जो हैं वो जो जिसमें आप लगाते हैं ना, ये जो पुराने शेतीर लगाते थे छतों में, तो शेतीर भी जो हैं वो नीचे हो जाते हैं। तो ये इस कौम की जो ये मीरास है उसमें से ये हो रहा है जो आपने देखा 2-3 दिन के अंदर, तो बड़ा अफसोस का मकाम है। और आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में कि लीडर्स जो होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं, आपने देखा होगा एक ज़माने में, अभी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं रही ना, किसी ज़माने में हमारी फिल्म इंडस्ट्री हुआ करती थी तो वहीद मुराद साहब जिस तरीके के बाल बनाते थे पूरे पाकिस्तान के लड़कों ने उस तरीके के बाल बनाए होते थे। तो अभी भी यही चीज़ है, अब लोगों को वो आइडियल वो अपने सियासतदानों में ढूंढते हैं। तो अगर सियासतदानों की ज़ुबानें इस तरह से होंगी, सियासतदानों के रवैये ये होंगे, तो आप सोचें कि आपकी आने वाली जो नस्ल है वो आप क्या सीख रही है और आप क्या बो रहे हैं जो आप कल को काटेंगे। राइट जाना चिकली साहब, इवन दो कि इसकी तहकीकात के लिए स्पीकर साहब की जानिब से 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है। जो पहले का मैंने एक इंसिडेंट कोट किया था स्टार्टिंग में, जिस पर स्पीकर साहब ने कहा था कि भाई दोनों साइड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी कल के वाक़े में क्या हुआ, इतना एग्रेशन क्यों नज़र आ रहा है हमें पार्लियामेंटेरियंस में? मैं समझता हूँ कि असल में यूथ पे बड़ा सवाल अब उठा है कि पीटीआई ने अपने कारकुनों को तरबियत नहीं दी कि पार्लियामेंट में आप किस तरह बात करेंगे, क्या आप किसी के लफ्ज़ के मुकाबले में लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आर्गूमेंट देंगे, दलील देंगे या पंच मारेंगे। वहाँ पे 70 से ज़्यादा ख़वातीन है, वो एक हरासमेंट की माहौल का सामना करेंगे। बाकी जो बारिश हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो किस तरह फील करेंगे। तो पार्लियामेंट में हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन पंच किसी को मारना अनएक्सेप्टेबल है। और फिर खान साहब ने ये भी कहा कि मैं तो इससे भी आगे जाने के लिए तैयार था। यानी क्या आप पार्लियामेंटेरियन से आप खुदा न खास्ता क्या उनके कपड़े उतारेंगे और कौन सा रह गया है। तो इन्हें सरजनिश करने की बजाय इस गुंडागर्दी के कल्चर को प्रोमोट करने का एक लीडर का ये वतेरा नहीं होना चाहिए। व्हाट जावेद लतीफ साहब सेड इज एक्सेप्टेबल? नहीं, वो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। PML नून की एक रजिस्ट्री है, पिछले 4 साल से मरियम नवाज साहिबा की ज़ाती करैक्टर असैसिनेशन को जिस तरह सब्जेक्ट बनाया गया PTI के अक्रॉस उनकी लीडरशिप का खान साहब ने, लेकिन कभी भी हमने उनकी रिएक्ट नहीं किया। फैमिली वैल्यूज ये PTI रिएक्शन नहीं है। देखिए, ये अगर आप समझते हैं एक ऐसी पार्टी से इखलाकी दर्स जो अपने ही कारकुन ख़वातीन कारकुन पे झपट पड़े हैं, जो हारस करते हैं, जो ईमेल अब्यूज़, जो टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, PTI की इखलाकियात के दर्स। लेकिन मैं सिर्फ आखिर में ये कहूँगा कि जो भी उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, जावेद लतीफ़ साहब उन्होंने माफ़ी मांगी है, हम कभी भी उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। PML नून हमने डिसेंसी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से सीखी है, मशरकी रिवायात और दूसरों की फैमिली का एहतराम, ये कोर वैल्यू है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू साद रफीक साहब, मुराद से साहब लर्नड हिज मैनर्स एंड एटीट्यूड फ्रॉम इमरान। लेकिन जो बिगर पिक्चर है, आखिरी एक जुमला बस, आपकी खिदमत में एक जुमला, लेकिन अगर हम अल्फाज के मुकाबले में मुक्का मारेंगे तो कल ये हक मुझे क्या हासिल होगा? नहायत माजरत तो कंडेम करना चाहिए ना। देखिए, ये जो है ना, ये जो हाफ हार्टेड किस्म की अपॉलॉजी ये लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। कल भी मेरे साथ प्रोग्राम में एक इनकी पार्टी की खातून बैठी हुई थी, तो उनको मैंने फौरन कहा, मैंने कहा ये ऐसी बात है, ये बिल्कुल ही इसके लिए ना कोई जस्टिफिकेशन बनती है, ना इसका कोई डिफेंस बनता है। आपकी लीडरशिप को चाहिए। देखिए, ऐसा एक इससे कम नवैयत का वाकया, बहुत कम नवैयत का वाकया कराची हमारी सिंध असेंबली में हुआ। हमारी लीडरशिप ने उसी वक्त उसको कंडेम किया और अपने MPA को मजबूर किया कि वो फौरन जो है उसको अपोलोजाइज करे, माफ़ी मांगे। लेकिन ये नहीं है, अभी तक हमने नहीं देखा कि इनकी लीडरशिप से किसी ने भी एक लफ्ज जो है मुजम्मत का कहा हो, और कहा हो। एहसन इकबाल साहब ही एक्चुअली ट्वीटेड दिस कि स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ जावेद लतीफ स्टेटमेंट and statement to media, we must maintain decency in language regardless of what इनकी टॉप लीडरशिप की तरफ था, उनकी तरफ से सरजनिश होनी चाहिए थी और एक्सप्लेनेशन कॉल होनी चाहिए थी। और आज साद रफीक साहब ने गुफ्तगू करने के बाद कहा जो भी कमेटी जो है फैसला देगी वो कबूल करेंगे। इतनी बातें सुना के within
few hours उन्होंने unreserved apology दी एक बार। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी को मुक्का मारेंगे तो बदकिस्मती से आप क्या बोएंगे, आप क्या बोएंगे, क्या माँ बहन की गालियां निकालेंगे। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने ट्वीट भी किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई इस पूरे मुल्क में इन्होंने अपनी खवातीन के साथ जो रवैया किया वो ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा नहीं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप ये कह रहा हूँ कि पीटीआई की कोई मॉरल लोकल स्टैंडिंग नहीं है कि लेकिन क्या पार्लियामेंट में तकरीर पर आप किसी को मुक्का मार सकते हैं? क्या ये राइट दूसरे पार्लियामेंट अलग चीज थी, लेकिन लोग हमारे कल्चर में जब माफी मांगते हैं इसके मतलब मूव ऑन। अगर उन्होंने मुक्का मारा था तो ये भी मुक्का मार लेते। मुक्के का जवाब ये नहीं होता कि आप अगले के फैमिली मैटर्स के अंदर एंड देन ही केप्ट रिपीटिंग जावेद लतीफ साहब कि मैं जी ये मेरे बच्चे के तरह हैं मुराद सईद, तो अगर आप उनके वालिद की तरह हैं तो आपके लिए उसकी बहनें जो है आपकी बेटियों की तरह हैं। बिल्कुल, ये एक बीमार सोच है जो इस वक्त में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे को इसने जकड़ा हुआ है। सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है अलीना, ये हमारे मुआशरे की बीमार सोच है। इसका इलाज अगर नहीं किया गया, कभी भी ये कमेंट्स पीएमएल उनकी फैमिली वैल्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करती। आई रिपीट, अंदलीब, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। ये जो पूरा मामला किस तरफ एक तो जा रहा है, खान साहब ने तो एटलीस्ट मना कर दिया था कि जावेद लतीफ साहब जिस टॉक शो में भी होंगे मेरी पार्टी से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं होगा उस फोरम में। अगेन जानक चीज़ साहब कोट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि अगर मुराद सईद ने तो इस तरह से इसको काउंटर किया है, मैं होता तो मैं बहुत आगे चले जाता। तो किस एक्सट्रीम लेवल पे खान साहब चले जाते? देखिए, एक तो जान अचकसई साहब ने, और मुझे पूरी बात करने दें क्योंकि बीच में बोल पड़ेंगे। एक तो इन्होंने एडमिट कर लिया कि इन्होंने जो है ना कि हमारे कपड़े उतारने थे, इस लेवल पे आ गए तो इनके कपड़े उतर गए। और इनका जो सही फेस है वो सबको पता है। वो कभी गुल्लू भट्ट अभी रिहा हुआ है तो आप 2 साल भूल गई थी कि गुल्लू भट्ट क्या है। और उनकी जो ट्रेनिंग है राना सनाउल्लाह से, ख्वाजा साद रफ़ीक माशाल्लाह, और ये पहली दफ़ा नहीं है, आपको याद होगा हिस्ट्री में इनके लीडर्स की लैंग्वेज क्या इन्होंने नुसरत भुट्टो साहिबा के बारे में कहा हुआ है सबको पता है। राना सनाउल्लाह ने जब वो पीएमएलएन में नहीं थे, जो उन्होंने मरियम नवाज और बेगम कुलसूम नवाज के बारे में कहा हुआ है, आप मीडिया वो दिखा चुके हैं आज बार बार। तो ये जो है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी तो पूरी रवायत है कि आपने बदमाशी, गुंडागर्दी और घटियापन का जो है वो आपने मुकाबला जो है कोई कर ही नहीं सकता इनका। इनकी सारी की सारी ज़हनियत जो है वो डिजीज्ड है, वो इतनी बड़ी डिजीज्ड है, इतने बड़े ये साइकोपैथ्स हैं सारे कि आप जरा गौर करें कि वो आदमी कह क्या रहा है, उसकी ज़हनियत देखें, उसकी सोच देखें, उसकी हरकतें देखें। उसके बाद मैं कहती हूँ उसके साथ उसको तो किसी मेंटल असाइलम में और अंडर सोशियोपैथ ट्रीटमेंट पे रखना चाहिए, क्योंकि ये इसी किस्म के बीमार दिमाग वाले लोग होते हैं जो कि मुआशरे में बेड़ा गर्क करते हैं और वहां खड़े होके जो टीवी स्टेशनों पे आके, मैं तो कहती हूँ कि पेमरा को उसको बैन करना चाहिए कि वो मत आए। जो उसने बातें की हैं, जो बच्चियों के बारे में बातें की हैं, मैं कहती हूँ किसी बच्ची के बारे में ये बात कोई करे उसकी जुबान काट के और उसको जितनी सजा दी जाए कम है। मेरे ख्याल में कि ये अपॉलॉजी जो है टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मेरे ख्याल में ये जो कमेटी बनी है ये एक आई वॉश है। तो ये कमेटी अंदर जो फैसला देती है दैट विल बी अनएक्सेप्टेबल टू पीटीआई। और वो ये यहाँ बैठ के हाउ डेयर दे डिफेंड हिम, किस मुंह से ये डिफेंड कर रहे हैं? इनकी माएँ नहीं है, इनकी बेटियां नहीं है, इनकी बहनें नहीं है, ये इस मुआशरे में नहीं रहते। व्हाट डू दे थिंक दे आर? अच्छा, मुझे जवाब देने दे। जी देखिए, मैं समझता हूँ पूरी पीटीआई का कल्चर है वो साइकोपैथ है, वो डिजीज्ड है। इन्होंने अपने कारकुनों को, मेल कारकुनों को ट्रेन किया है कि आप खवातीन पे झपट पड़ें, आप उनको हरस करें। पीटीआई के जलसों में उनके कपड़ों को जो है जिस तरह से मिसहैंडल किया। आई एम सॉरी, लेट मी फिनिश प्लीज। फॉर गॉड सेक डोंट। नो हमें मॉरल नहीं, हमें आप सुनिए ना प्लीज। अलीना बाबा साहब, लेट मी फिनिश। Can I finish? Can I finish? What Javed Lateef साहब, ये देखें दोनों जमातों की जो शिद्दत ये मैं सिर्फ ये कराऊंगा। अब ये कुछ और देखिए, मैं
मैं पीटीआई का असली चेहरा दिखा रहा हूँ, उनका कल्चर दिखा रहा हूँ। अगर खवातीन का हरासमेंट है तो उसमें पीटीआई के सारे रिकॉर्ड आप जो भी वीडियो क्लिप्स आप हर जैसे के दिखा सकते हैं। क्या किया है? अच्छा, आप पीटीआई के कल्चर की बात कर रहे हैं, कितने खवातीन ने दावा किया है? सुनिए ना, देखिए सुनिए ना, आपको मेरी बातें पसंद नहीं तो मुझे क्यों बुला है? अच्छा जी साहब, थोड़ा अपनी पार्टी से हटके मैं आपकी बात यू एज एन इंडिविजुअल आप बताएं। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। देखिए अंदीब अब्बास क्या हम में से किसी ने उस पे क्या शेर अब्बासी को कहा कि नहीं उसकी वजह से लड़ाई हुई? आपने इस मीडिया के कुछ एंकरों ने, दोस्तों ने क्या उस पे कभी कहा कि ये साइकोपैथ है पीटीआई के वो मेल कारकुन जिन्होंने खवातीन को हरास किया अपने जलसों में? क्या कहा? यस या नो? नहीं कहा। अंदलीब अब्बास साहिबा वो फेमिनिस्ट है, वो बिल्कुल गलत था। तो फिर हमें क्यों मॉरल लेक्चर ये दे रहे हैं? खुद अंदलीब अब्बास साहिबा फेमिनिस्ट है, वो अच्छी लीडरशिप है पीटीआई की। क्या उन्होंने कंडेम किया अपने कारकुनों को जब उन्होंने खवातीन के साथ ये रवैया किया? क्या उन्होंने उस लीडर को कंडेम किया जब उन्होंने मैसेजेस भेजे? क्या उन्होंने कंडेम किया खान साहब को जब वो खामोश हो गए, अपने उन खवातीन के दिफा में खड़े ना हो गए जिन्होंने पूरी मशरकी रिवायात को जो था को बाला कर दिया अपने जलसों में? क्या हमें देखने को मिला? आप समझते हैं कि ये आसमान से आए, ये दूध के दुल्हे? मैंने कहा women face every day on a daily basis. What needs to be done? पीएमएल नून की लीडरशिप, वो चुप होंगे तो मैं कुछ पीएमएल नून की लीडरशिप हमारी अब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो सबसे ज्यादा खवातीन के मेक श्योर करती हैं कि कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिसमें सबसे ज्यादा उनका जो है कुछ नहीं कहा। लेकिन 4 साल में उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन वो हुई है उफ तक नहीं किया उन्होंने, क्योंकि हमारे वैल्यूज हैं ईस्टर्न वैल्यू पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यकीन रखते हैं। लेकिन जो सिख मेंटालिटी है वो पीटीआई के चेयरमैन खान साहब की है, जो अपने कारकुनों की तरबियत नहीं करते हैं, जो अपने कारकुनों की तरबियत नहीं करते हैं, जो खवातीन को मुझे एक ब्रेक लेना है। जस्टिफिकेशन से जाने जी साहब, मामला हल की तरफ नहीं जाता, जस्टिफाई नहीं करें। एक चीज गलत हुई है उसको गलत हुई है, फिर 2 गलत हुई है तो उसको भी कंडेम करें ना। स्पेड जाना चाहिए साहब। वील गो फॉर अ ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मज़हर साहब हम ब्रेक से पहले तो गुफ्तगू कर रहे थे ये जिस तरह से पार्लियामेंटेरियंस गुत्तम गुत्ता हुए गुज़िश्ता रोज़ भी, कुछ अरसे पहले भी हम यही बात कर रहे थे, लेकिन जो एक वो ऑफ द रिकॉर्ड कहा जा रहा था कि जी वो एक मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ रिपोर्टर्स की, और जो सर्कुलेट हुई वो वीडियो जिसमें खान साहब ने फॉरेन प्लेयर्स को फटीचर का, जिस पर उनको लीगल नोटिस भी सर्व हो गया, ये नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कॉन्डक्ट से बड़े लाइमलाइट में आ चुके हैं इस वक्त। क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्या एथिक्स होता है जो जिसको फॉलो करना जरूरी है, एंड शुड दिस हैव बीन डन? शुक्रिया। देखिए 2 चीजें होती हैं, 2 तरह की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है। एक तो ये होती है कि मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन आप भले दे दें लेकिन मेरा नाम कोट नहीं कीजिएगा। दूसरी चीज ये होती है कि वो स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है कि इसको आपने बिल्कुल भी जो है वो नहीं देना। और उसमें जाहिर है आपको अगर कोई कह देता है कि ये कम्प्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड है और इसको आपने ऑन एयर नहीं करना, इसको आपने पब्लिश नहीं करना, तो वो जाहिर है वो एथिकली आप बाउंड होते हैं। इस केस में जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये कि ये गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी और ये नहीं कहा गया था कि इस गुफ्तगू को आपने, क्योंकि वहाँ जहाँ तक मेरी इत्तला है कि वहाँ नोट्स भी लिए जाने थे, सारे लोग वो अपने नोट्स ले रहे थे। मुझे क्योंकि मैं उधर मौजूद नहीं था तो एग्जैक्टली मुझे इसका नहीं है। दूसरी बात ये कि जो उस पर रद्दअमल इमरान खान का भी और पीटीआई की दीगर रहनुमाओं का भी आया, उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं किया। उन्होंने बल्कि तरीके से उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने जो बात की है वो बकौल नईमुल हक साहब के कि वो गैर जो मारूफ प्लेयर्स के बारे में उन्होंने की है। फवाद चौधरी साहब ये कहने लगे कि जो इस तरह के फटीचर प्लेयर्स हैं उनके बारे में की है, जो दूसरे हैं उनके बारे में की। फिर खुद इमरान खान ने हामिद मीर साहब के भी प्रोग्राम में आके उन्होंने किसी एक ने भी, जहाँ तक मैंने उनके स्टेटमेंट देखे, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी और इसे नहीं देना चाहिए था। तो जहां अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई थी
तो फिर पीटीआई की तरफ से ये बात आनी चाहिए थी कि ये कम्प्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड है और ये बात जर्नलिस्टिकली, और अगर ऐसा था तो ज़ाहिर है जर्नलिस्टिकली नॉर्म बिल्कुल क्लियर है कि अगर कुछ कहता है कि स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड अगर आपको आप अगर देंगे तो आप मॉरली और एथिकली जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब होंगे। तो इस सिचुएशन में तो मुझे लगता है कि पीटीआई ने इसको भरपूर इसका दिफा किया है तौर पे कि इमरान खान ने जो वो किया। खुद इमरान खान ने भी इन चीज़ों को ये नहीं कहा कि उन्होंने ये ऐसी कोई बात नहीं की थी या स्ट्रिक्टली ऑफ द रिकॉर्ड बात की। राइट मज़हर साहब, चूँकि वो जो खातून रिपोर्टर हैं इफ़त रिजवी, उनको थ्रेट मैसेजेस आने लगे, उनको ट्विटर पे जो है और बकौल कुछ लोगों के वो पीटीआई के लोग जो हैं वो उनको ट्रोल करने लगे, बहुत उनको उनके हस्बैंड के हवाले से वो क्लिप्स, वो पिक्चर्स जो हैं, तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगी, इल्ज़ाम लगाने लगे कि भाई वो शायद कोई फॉरेनर है, कोई यहूदी है, इस तरह की बातें, जबकि उनका ताल्लुक बताया जाता है कि वो शख्स बेचारे गिलगित से ताल्लुक रखते हैं। मुझे एक बात बताएं सर, ये और आज फिर बनी गाला में उनको उनके हस्बैंड के साथ इनवाइट भी किया गया टू जस्ट टू क्लियर द एयर। सर ये किस तरह से, मतलब, और ये फटीचर लफ्ज़ कहना जिसको खान साहब का भी आपने कोट किया, बट इतना उसको अग्रेसिवली अनफॉर्चुनेटली हमारी हुक्मरान जमात भी उस चीज़ पर रिस्पॉन्ड इतना कर रही है, हर कोई उसको इतना डिबेट में लेकर आ रहा है। क्या खान साहब जो है, इज ही नॉट एंटाइटल्ड टू हैविंग हिज ओन ओपिनियन? हर किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में तो गुफ्तगू होती ही होगी। जी, सबको अब सब पर्सनल ओपिनियन का राइट है, सबको ये राइट है कि वो किसी के बारे में कोई भी पर्सनल ओपिनियन रखें। लेकिन देखिए, जब आप पर्सनल ओपिनियन रखते हैं तो उसको जब आप पब्लिक करते हैं वो और उसकी कॉनोटेशन बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। आप कह सकते हैं कि प्लेयर्स, क्योंकि इमरान खान को ये सारे क्रिकेटर्स जो फॉरेन क्रिकेटर्स आए हुए थे, इसमें ज्यादातर लोग इमरान खान को आइडियलाइज करते हैं, इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि वो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। तो अब आप सोचें कि कोई यंगस्टर जो है, कोई यंग फॉरेन क्रिकेटर, अगर वो उसको ये पता चलेगा इनके बानों में, तो वो और तो कुछ नहीं, वो हर्ट जरूर होगा कि मैं जिसको आइडियलाइज करता था वो मुझे कितना मीडियोकर समझ रहा है। तो इसलिए उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड परहैप्स नॉट द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स एज वेल। बट मज़हर साहब, उसके आगे का जो एक इंसिडेंट हुआ गुज़िश्ता रोज, जिसमें जावेद लतीफ़ साहब ने बड़े एक्सट्रीम पे जाके जो गुफ्तगू की, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए किसी भी शख्स की बहनों के हवाले से, उसको, और आप ये इमरान खान साहब की जो पहले की ये फटीचर लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, इन दोनों का अगर मवाजना किया जाए, क्राइम ज़्यादा बड़ा क्या है सर? देखिए, ये जो जावेद लतीफ और मुराद सईद वाला वाक़या है, ये तो बिल्कुल ही डिसग्रेसफुल है। मुराद सईद साहब का एक फिजिकल रिएक्शन जो था वो जाहिर है वो किसी तरीके से जो है एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता और गलत था। लेकिन जो जावेद लतीफ साहब ने बातें की हैं, वो खुद अपने आप को ये कहते हैं, दावा करते हैं कि वो मुराद सईद के वालिद की तरह हैं, और मुराद सईद उनके बेटों की तरह है। तो कोई जाहिर है फिर इसका मतलब यह है कि मुराद सईद की जो बहनें हैं वो उनकी बेटियों की तरह हो। बिल्कुल। तो जब आप अपनी बेटियों के बारे में इस तरह की बात करते हैं, जिनको आपने कहा खुद मुराद सईद तो मेरा बेटा है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही ज्यादा डिस्ग्रेसफुल और नाकाबिल कबूल जुमला है ये किसी भी तरीके से। और इस सिलसिले में देखिए, माजी में हमारी सियासतदानों ने खवातीन के बारे में बहुत ही हद तक आमेज रवैये रखे हैं, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 88 में बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीर साबिक़ अमरीकी सदर फोर्ट के साथ डांस करती हुई बाकायदा प्राइवेट जहाज़ों से लाहौर की सड़कों पे फेंकी गई थी 88 के इलेक्शन में। इसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो के बारे में हमारे सियासतदान मुख्तलिफ बातें करते रहे हैं, मरियम नवाज के बारे में इस तरह की बातें रही हैं, खुद शिरीन मज़ारी के बारे में जो वजह साहब के रिमार्क थे वो इंतहाई सामने। तो हमारी बदकिस्मती से जो मेल माइंडसेट है वो खवातीन के बारे में, वो किसी पार्टी की भी हो, उनके बारे में हम इस तरह के रिमार्क पास देते हैं, लेकिन जुमला है अनफॉर्चुनेटली हम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। मज़हर साहब, थैंक यू सो मच। काउंटर इसका काउंटर हो नहीं सकता। इसका काउंटर सिर्फ भी हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ जावेद लतीफ से एक्सप्लेनेशन कॉल करें, जैसे हमने उनकी मेंबरशिप सस्पेंड की जाए
बिल्कुल इसी तरीके से इमरान खान को कतई तौर पे ये नहीं चाहिए था कि मुराद सईद से ये कहते कि तुमने ठीक किया। तुम एक चीज याद रखे, मुराद सईद ने और मज़हर साहब उधर भी अगर इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि जी मैं शायद इससे आगे बढ़ के कुछ वो करता, तो अगेन दैट इज इनकरेजिंग मुराद सईद एज वेल। मतलब मुराद सईद भी अगर एग्रीवेट हुए थे, वो भी लास्ट भी जो हमने स्कफल देखा उसमें भी मुराद सईद साहब थे जो शायद जहां तक मेरी मालूमात है, मुराद सईद वाला वाकया जो था वो पहले हुआ था, और जावेद लतीफ ने जो इंतहाई खराब और जो है वो नाकाबिल कबूल रिमार्क दिए थे, वो उसके बाद में किया गया है। लेकिन बाद में भी देने का मतलब ये नहीं कि वो काबिल कबूल हो सकते, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते। एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमें और अपने व्यूज से आगाह करने के लिए। पर व्हाट नीड्स टू बी डन रुबीना, रियल क्विक, डिस्क्वालीफाई करना इनको बनता है, सस्पेंड इनकी रुकनियत करनी बनती है, या दोनों के हवाले से? देखिए, दोनों के हवाले से टाइमली एक्शन लेना चाहिए था इनके पार्टी के लीडरान को, बजाय उनको इनकरेज करने के और उनको शाबाशी देने के। और ये जो कमेटी बनी है 6 मेंबर, देखिए मैं कमेटी तो बाद में बनेगी, कमेटियों के रिजल्ट आज तक क्या आए हैं इस मुल्क में जो इससे आ जाएगा, लेकिन ये है कि लीडरशिप की तरफ से, टॉप लीडर की तरफ से एक बड़ा आना चाहिए था, एक स्ट्रिक्ट किस्म का डिसिप्लिनरी कॉल उनके लिए आनी, एक्सप्लेनेशन कॉल्स होनी चाहिए थी। लेकिन आपने कभी सोचा अलीना कि ये सब कुछ जो है ये हो रहा है जो हमारे इर्द गिर्द मुल्क में, क्या इशू ये है कि खिलाड़ी फटीचर हैं या इस तरह की गुफ्तगू की जाए, ये हमारे मसाइल हैं? असल में जो ये मुझे तो एट टाइम्स लगता है कि शायद ये एक स्मोक स्क्रीन है, जो बड़े इश्यूज़ हैं, जो बड़े मसाइल हैं उस मुल्क के, पब्लिक के मसाइल हैं, उनसे अटेंशन। और इस वक्त एक 3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एक आपका है पनामा लीक्स का फैसला, दूसरा आपका है फौजी अदालतों का इजरा, और तीसरा भी अब मैं भूल रही हूँ, वो भी इतनी इम्पोर्टेंस का हामिल है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, वो भी अब मेरे जहन में वो नहीं आ रहा। ये 3 इश्यूज़ जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो है वो इनके बारे में बात कर रही है। इनको जब देखें, जो दोनों जमातें हैं, हुकूमत में है और अपोजिशन में जो हमारे साथ पीटीआई है, इन्होंने तो कुछ और ही चीजें जो है। अभी आपके प्रोविंस चले गए ना, सिंध चले गए नवाज शरीफ साहब, वहां पे जाके तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं। देखिए वो तो हम दूर करेंगे। देखिए वो तो ये है ना, वो तो इलेक्शन ईयर है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत इस तरह के इकदाम करेगी, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि सिंध के अंदर उनका वोट बैंक नहीं है, वहां उनको एक वोट बैंक बनाना है, उसके लिए वो इस तरह के इकदाम जरूर करेंगे। लेकिन ये जो इस तरह के इश्यूज को ला के जो है इस तरह की बातें, मेरे ख्याल में पीटीआई आल्सो फॉल्स इनटू द ट्रैप, या एज अ पार्टी टू दैट ट्रैप, या तो उनकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि जो अवाम का मसला ये नहीं है कि अवाम को कि इमरान खान ने किसी को फटीचर कहा है या नहीं कहा है, तो बेसिकली उनको भी चाहिए था कि बस पहले ही माफी मांग लेते हैं, मूव ऑन, बजाय कि इसको एक लंबी डिबेट बनाई हुई है, जिधर देखें पटीचर पटीचर पटीचर। मतलब ये क्या है, किस तरफ हम लेके जा रहे हैं अपने मुल्क को? एब्सोल्युटली। अंदलीब, आई कम टुवर्ड्स यू। आज मैंने बल्कि जिक्र भी किया था, बनीगाला में इफ़त रिजवी जो न्यू टीवी की रिपोर्टर हैं, उनको भी इनवाइट किया गया, खान साहब से मुलाकात हुई उनकी और उनके शौहर की। ये एक चीज़ जो मुझे भूल गई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, वो है नेशनल एक्शन प्लान। वो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, सब जो है ये इस तरह की जो बातें हैं, जिसका कोई लास्ट वीक में तो हम पीएसएल कराने पे इतनी एक वो डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर वाकई में रियल इश्यूज they just they are brushed under the carpet. अंदलीब, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब चले गए हैं बड़े अवामी मुहिम पर, और सिंध का दौरा किया है काफ़ी, मेरे ख्याल से 2013 के बाद से अब लोग कह रहे हैं कि अब उनको 3-4 साल बाद जो है वो फिर सिंध याद आया है, वहाँ पे महरूमियाँ दूर करने की बातें की जा रही हैं। क्या अब अगर परफॉर्मेंस के बेस पे होगा अंदलीब अवाम का फैसला, तो फिर सबके फिर सूबों की बात आएगी, सबके वहाँ पर गवर्नेंस की बात आएगी? अलीना, पहले तो मैं सुन रही थी, मैं कुछ कमेंट्स दूंगी जी, कि मैं बड़ी सरप्राइज्ड हूँ जान अटकज़ई से कि सारी दुनिया कह रही है कि ये एक नहायत घटिया गिरा हुआ इक़दाम है, और ये बैठ के यहाँ उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये अभी कुछ दिन पहले तो माशाल्लाह ये अपने दूसरे लीडर को ऐसे ही डिफेंड करते थे, जिन्होंने औरतों के मुतालिक इतनी शर्मनाक बातें की थी, जिनका नाम मौलाना फजलुर रहमान है। तो इनको मेरे ख्याल एक्सपीरियंस है कि अपने जितने भी ये एंटी विमेन किस्म के लीडर्स को ये डिफेंड करते हैं, और जितना जितना वो गंदी बातें करते हैं
ان کو آ کے اور ان کو چڑھا کے پیش کرنا میرا نہیں خیال کہ دس از گوئنگ ٹو کنونس اینی بڈی اینڈ اٹ جسٹ ایکسپوزز دیم ایون فردر. اگریڈ. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پارلیمنٹ کے اندر صرف نون لیگ کے ہی رہنما نہیں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی انسٹیگیٹ ہوتی ہیں اکثر چیزیں. لاسٹ ہم جو رول کی بات کر رہے تھے, لاسٹ جو گتم گتا ہوئے تھے ہمارے پارلیمنٹیرین شاہد خاقان عباسی تھے اور مراد سعید صاحب بھی تھے, شاہد افریدی صاحب بھی تھے. تو تحریک انصاف کے پھر وہ چیئرمین صاحب آگے کیا کس طرح سے ان کو ڈسپلن اور وہ سب کا درس دیں گے؟ اچھا رینا ذرا اب تم دیکھو, اب مجھے بات کرنے دینا کہ یہ پارلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, پارلیمنٹ کے اندر ایک سپیکر ہے اور ڈیپیوٹی سپیکر ہے, اور وہ نیشنل اسمبلی کا سپیکر نہیں ہے, سب کو پتہ ہے وہ نون لیگ کا سپیکر ہے. اچھا جب وہ الٹی سیدھے جو مرضی بات کر لے 2 گھنٹے ان کی پارٹی کے, کوئی اٹھتا ہے یہ مائک بند کر دیتے ہیں, یہ اجلاس ہی خالی کر دیتے ہیں. جب ایک جمہوریت میں آپ کی آواز بند کی جائے گی, جب آپ کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ صرف ایک آواز آنی ہے اور ایک ہی آپ کی جس کو کہتے ہیں گفتگو ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دی PMLN نارمز, آپ وہاں ریزنٹمنٹ, وہاں ڈسپلن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کس طرح وہاں مائک بند کر سکتے ہیں لوگوں کی اگر وہ آپ کو اپوز کر رہے ہیں؟ اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں تو جب آپ کا بادشاہت اور آمریت والا رویہ ہوگا تو پھر آپ کو ریٹیلیشن آئے گی. آپ خود نارمز کو توڑ رہے ہیں. جمہوریت کی نارمز میں اپوزیشن کی گلا گھونٹ دینا جمہوریت کا نارم نہیں ہے. تو آپ کون سے پارلیمنٹری نارمز کی بات کر رہے ہیں؟ اس پارلیمنٹ کا جو ربر سٹیمپ ہے, اس پارلیمنٹ میں جہاں ٹیکس کا اجازت ہی نہیں لی جاتی, اس پارلیمنٹ میں جہاں منسٹر ہی نہیں آتے, اس پارلیمنٹ میں جہاں مائک جو ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جب مرضی بند کر دیں, اس پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. تو اس پارلیمنٹ پہ تو احتجاج ہوگا, بوائیکاٹس ہوگی, ریٹیلیشن ہوگی, بیکاز جو پارلیمنٹ کا ریگولیٹر ہے who is the speaker, he himself is partisan, he himself is instigator. اچھا ابھی تک معاف نہیں کیا ہے صادق کو عمران خان کو ہرانے میں. ایک مجھے بریک کی طرف جانے سے آپ کا کامنٹ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جانج جی صاحب, میں صرف یہ کہوں گا کہ PMLN ان کے بقول اینٹی وومن ہے. ہم نے خواتین پہ اپنی جلسوں میں شرکت پہ پابندی نہیں لگائی ہے. آج بھی PTI نے KPK میں اپنی خواتین کارکنوں کی شرکت پہ پابندی لگائی ہے کیونکہ یہ PTI کے کارکنوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی. فیکٹ یہ کہتے ہیں کہ JUI اینٹی ویمن ہے. آج بھی ان کے مجلس عاملہ کی اجلاسوں میں خواتین بیٹھتی ہیں, کوئی ایسی شکایت نہیں آئی. یہ کہتے ہیں خان صاحب پرو ویمن ہے. PMLN کی سیکنڈ لیڈرشپ خواتین پہ مشتمل ہے. ان کے بارے میں کل انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح منتخب ہوتی ہے. یہ شرمناک PTI کا کلچر ہے جو اینٹی ویمن ہے, اور شرم آنی چاہیے ہر خاتون لیڈر جو PTI میں ہے ایسی لیڈرشپ کو جسٹیفائی کرنے کا اور ایسا بیہیویئر جسٹیفائی کرنے کا. اب رہی پارلیمنٹ کی بات, یہی آیا صادق صاحب جن کے یہ پیر پکڑتے تھے کہ جی ہمارے استعفے واپس جو ہے وہ ایکسیپٹ نہ کرو, ہمیں فرقس دے دو. آج وہ برے ہو گئے. حالانکہ سب سے پہلے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ فزیکل وائلنس آپ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے. اور میں آپ کی توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر فزیکل وائلنس پارلیمنٹ پہ ہم نے جسٹیفائی کیا, اس کو پروموٹ کیا, تو اس کے امپلیکیشن سول وار کی طرح ہوں گے. کارکن اکراس پاکستان ایک دوسرے سے گتم گتا ہوں گے. پھر موقع سے آگے بات نکلے گی. تو PTI کیا سول وار کی طرف اس ملک کو لے جانا چاہتی ہے؟ یہ ان کی ڈیسپریٹنس ہے. خان صاحب یہاں تک پہنچے جو بہت افسوسناک ہے. ہم نے اس ملک کو کام کرنا ہے. لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ کارکنوں کے جذبات کو آپ کنٹرول کریں. اگر انہیں غلطی کی ہے اس کو جسٹیفائی نہ کریں, معافی مانگے اور موو آن. لیکن یہاں پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا میں کچھ اور کر بیٹھتا. تو اس کا مطلب یہ میسج ہے کہ ہم اس حد تک بھی تیار ہیں کہ گلی کوچوں میں ہم لڑیں گے. بدقسمتی سے ہم تو اس ملک میں عدم برداشت کو اس حد تک لے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہم اگر اس طرح رویہ کریں گے تو یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا. ایگزیکٹلی رویوں کی جہاں پر بات آ رہی ہے, اور چونکہ نواز شریف صاحب بھی رویوں پہ کافی درس دیتے ہیں عوام کو. مجھے ایک بات بتائیں, یہ گزشتہ روز کی جو پارلیمنٹ کی جو سیشن تھا اس میں جاوید عطیہ صاحب نے مطلب وہ ذکر کیا نا پھر وہی عمران خان صاحب کی اس گفتگو کا, تو اٹ سیمز لائک PMLN لیڈرشپ از آلسو ہیونگ اے ویری ہارڈ ٹائم گیٹنگ اوور تھنگس. اور جس طرح سے روبینہ نے بھی کہا کہ ہمارے جو اصل ایشوز ہیں, ریئل ایشوز, ان سے اٹینشن ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریئل ایشوز یہ نہیں ہے کہ PSL فارن علام نے کروایا ہے. ریئل ایشوز یہ نہیں ہے کہ ECO کانفرنس ہم نے کروائی ہے. ریئل ایشو یہ نہیں ہے کہ
मैं आपको बता रहा हूँ रियल इश्यूज, लिसन टू मी, आपने सवाल किया ना, रियल इशू ये नहीं है कि आवाम की डेवलपमेंट नीड्स हर गांव में 2018 इलेक्शन से पहले हम पूरा करेंगे। रियल इशू ये नहीं है कि कुवैत ने पाकिस्तानियों पे पाबंदी उठा दी है, ये रियल इशू हमारे लिए है, मीडिया के लिए नहीं। सर आप सिंध नवाज शरीफ साहब क्यों चले गए हैं? क्यों उस पे पाबंदी है? वीजा लेना पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन यानी कि इलेक्शन ईयर में आप दाखिल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हर गांव हर डिवीजन जाना चाहते हैं, ये उसका कमिटमेंट है, आवाम से राब्ता सिंध के देहात को पंजाब के शहरों से और सिंध में हम स्टेक होल्डर हैं, डेवलपमेंट में हम स्टेक होल्डर हैं। वहां पे जो बस का मंसूबा 18 बिलियन का पीएमएलयू नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया है, जो पंजाब की हालत देखिए, पंजाब की हालत देखिए, वहां के देहात से बेहतर बनाने की बात है। 10 करोड़ आबादी है पंजाब के, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वर्ल्ड बैंक ने मेरी मासूम सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसके लिए ना पैसों की ज़रूरत है ना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। अब बेशक उनका हक है, हम वेलकम करते हैं, हर गांव में तशरीफ़ लाएं, वज़ीर आज़म है हमारे, लेकिन वो वहाँ जाने से पहले कम अज़ कम पार्लियामेंट को जो है वो शर्फ बख्श दें कि वहाँ जाके बैठें जहाँ पे उन्होंने मसाइल हल करने हैं। ये गली गली कूचा कूचा फिरने के लिए उनके बाकी जो लीडर हैं वो काफी, जब भी जरूरत पड़ी वो आप अटेंडेंस शीट निकालें, आपको पता चल जाए। देखिए मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, 110 और भी चीजें उनकी एजेंडा पे, या तो आप कहें कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, देखिए जलसे करने के लिए जब टाइम है तो पार्लियामेंट के लिए आने में टाइम किलोमीटर का फासला तय नहीं कर सकते। सर ये पैनिक और फ्रस्ट्रेशन वाकई में है पीएमएलएन के रैंक्स में, मसलन कुछ अपकमिंग डिसीजंस को लेके, फैसलों को लेके की बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ही नजर आ रही है सर, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, कम आ रहा है फ्रस्ट्रेशन, अंदर भी नजर आ रही है गुफ्तगू में और बाहर भी नजर आ रही है। मैं तो सिर्फ हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा हूं जो पीटीआई स्टैंड करती है, रिप्रेजेंट करती है। और रही कि पनामा की बात अगर आप कर रहे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उसमें नवाज शरीफ साहब बाइज्जत पर ही होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के 2 नंबर के कागजात 2 नंबर के सबूत और पकौड़ों के सबूत पे मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने की ख्वाहिश पीटीआई की हो सकती है। प्रोग्राम को रेफरेंस देंगे, कल वो कहेंगे हो सकती है, पीटीआई वाले के इनको फैसले का पता था। लेकिन इस बुनियाद पे एक मुंतखब वज़ीर आज़म को पकोड़े के सबूत पे घर भेजना, मैं समझता हूँ कि ये ख्वाहिश है पीटीआई की, लेकिन उन्हें मेरिट पे जीतना होगा। पीटीआई की ख्वाहिश है, आप क्या कहेंगी आप? फाइनल रिमार्क्स। अच्छा ज़ही साहब की स्टेटमेंट जो है इट कैन बी यूज्ड। मैं आपको बताऊं कि वो इसको कहते हैं कि जब डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, सो ये डूब रहे हैं और डूबते डूबते ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको तिनका मिल जाए। कभी वो तिनका एक लफ्ज़ के ज़रिए मिल जाता है, उस लफ्ज़ पे चिमट जाते हैं ये, कभी इनको लगता है कि इनकी जिसको कहते हैं वैसे ही इनकी छुट्टी होने वाली है। तो ये मैं आपको बात बता दूं कि जहां मर्जी ये जाएं, अब इस दफ़ा हमने इनको ना टर्की जाने देना है, ना जद्दा जाने देना है, ना कुवैत जाने देना है। इनके सारे एग्जिट हमने दरवाजे बंद कर देने हैं, इनको यहाँ रखना है। पनामा के बाद भी इनको ये समझते हैं कि पनामा के बाद इनकी कोई जिसको कहते हैं छुट्टी हो जाएगी। इनको इस दफ़ा सारी पार्टी को, सारी फैमिली को पाकिस्तान में रखना है, एक एक चीज़ का जवाब दिलवाना है, पाकिस्तान के अवाम के पैसे का जवाब दिलवाना है। जो मर्जी ये कर लें, ये लफ्ज़ उठा लें, फुल स्टॉप उठा लें, कॉमा पे बैठे रहें, 2 दिन उस पर तूफान खड़ा करें, लेकिन जो तूफान इन पे आने वाला है ये इससे बच के नहीं जा सकते। राइट। टीचर पे माफी कब आ रही है ये पूछ। अच्छा मैं सिर्फ लास्ट कमेंट रुबीना का, चूंकि इनको पूछें कि ये जो 10 अरब रुपए के फ्लैट्स हैं और जो मॉडल टाउन पे इन्होंने 100 बंदे मारे हैं, आज तक माफी नहीं मांगी। शर्म करें, शर्म करें। जो ये बैठे हुए जो जावेद लतीफ साहब ने कहा है, ये किस मुंह से डिफेंड कर रहे हैं? ये अपने मुंह को बेड़ा गर्क कर रहे हैं वहां बैठ के ऐसे बंदों को डिफेंड करते हुए। आप सबकी बहनें हैं, आप सबकी वाली बात है ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। राइट, थैंक यू सो मच अंजलि फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। रुबीना आपका भी बहुत शुक्रिया, और जानकी साहब, एंड वी रियली होप जो रुबीना ने पॉइंट रेस किया है कि हमारे जो रियल इश्यूज हैं, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, तो नेशनल एक्शन प्लान के वो पॉइंट्स पर अमल दरामद, बिकॉज बाकी इनके पता नहीं क्या किस दुनिया में
मुझे उम्मीद है सेवन शरीफ में अब पुलिस की नफरी काफी होगी, दो नहीं होंगी। देखिए आप ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी में हाईलाइट आप कर ये रहा हूं, उस पे भी काम करेंगे। आप मुझे ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि आइंदा दो पुलिस आइंदा आपने पंजाब तारीफ के अंदर कोई दहशतगर्दी का नहीं, वाकया नहीं दो होगा? पुलिस यहाँ वहाँ पे मुझे नाराज अभी थी आप है। लिख सेवन कर दें, शरीफ धमाके के आप पहले यहाँ मुझे लिख दो कर दें पुलिस- अचकज़ई साहब दो पुलिस कि आपने आइंदा लगाए थे। देखें ये ये कोई नेशनल तरीकाकार प्लान पे नहीं अमल है, है। ये कोई तरीकाकार ये नहीं सिंध है। गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस है। आप मुझे यहाँ साइन करके दें कि आइंदा सेवन शरीफ पंजाब पे के कितने अंदर पुलिस थे सिक्योरिटी के कोई लिए? ये मुझे अश्योरिटी दें आज, जिस तरह की बातें करते हैं ना, आज श्योरिटी दें कि आइंदा कभी पंजाब में कोई भी दहशतगर्दी का वाकया नहीं होगा। ये दो ऐसी पुलिस चीजें सेवन I'm शरीफ sure की that सिक्योरिटी Aziza कर रहे won't be थे, जो able to- पाकिस्तान आई में एम सबसे सॉरी, बड़ा दरगाह आप के अनरीजनेबल बातों का मैं जवाब नहीं दे बट एक मैच के लिए वैसे वाकई जो कमिटमेंट नजर आई हमें स्टेट की, बिलावल भुट्टो साहब के लिए मुल्तान में सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, लेकिन मैच के लिए हो सकती है। अभी इसका जवाब दे दें। कब आ रहे हैं? 10 मार्च को आपने नहीं दिया ना क्लियरेंस, 10 मार्च को क्लियरेंस नहीं दिया है ये इन्होंने। बहाने आप चले वेलकम है, थैंक यू पंजाब सो से मच कोई फॉर आपको जॉइनिंग बात अस। नहीं करता। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।